Hello student, in this video lecture we are going to discuss about the obsessive compulsive disorder. As you know that obsessive compulsive disorder is another neurotic disorder. In last video we are discussing about a neurotic disorder that is called anxiety. In this video lecture we are going to discuss about the obsessive compulsive disorder. The obsessive and compulsive, these are two different words which are Latin, which are from the Latin. These are two Latin words that have the meaning. In the OCD, the a obsessive thought is followed by a compulsive act. That disease is called the obsessive compulsive disorder. Okay, the obsessive thoughts, that means unwelcome thoughts, an idea, image that repetitively introduce in mind. कुछ ऐसे विचार मन में बार बार आते हैं जो कोई ज़रूरी नहीं है, जिनका कोई वहाँ पे उस इवेंट से, उस सिचुएशन से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी वो हमारे दिमाग में रिपीटेटिवली आते हैं. These are unwelcome thoughts. That's called the obsessive thoughts. And these obsessive thoughts, हम इसको रोकने की कोशिश भी करते हैं. पर्सन में ट्राई टू रेसिस्ट ऑन द ऑब्सेसिव थॉट बट अनेबल टू डू, कर नहीं पाते हैं. ऑब्सेसिव थॉट्स जनरली रिलेटेड विद द रिलीजन, एग्रेशन, सेक्सुअल डिजायर एंड साइंटिफिक थॉट्स. ठीक है, these are the obsessive thoughts. So I hope that you understand what is the obsession. Obsession means if your brain sticked somewhere, if your thoughts are sticked somewhere, आप कहीं पे रुक जाते हैं, आपका सोचना बार बार आप उसी चीज़ के, आप ना चाहते हुए उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, that is called the obsession. ठीक है, and that is called the obsessive thoughts. It is followed in this disorder. It is for obsessive thoughts are followed by the compulsive act. The compulsive act means unusual, irrational, repetitive, meaningless activity that occurs after obsessive thoughts. Mostly ऐसा होता है कि compulsive act जो होता है obsession के बाद में ही आता है, but sometime it without the obsession. ठीक है, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को एक पर्टिकुलर मूवमेंट देते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न. ठीक है, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि वो उस चीज़ से क्या बता रहे हैं, उसका कोई कारण नहीं होता. एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, महाभारत आपने देखी होगी, तो एक एक कैरेक्टर प्ले होता है वहाँ पे, शकुनी, जो बार बार अपनी उंगलियों को हिलाता रहता है. वो उसका कंपल्सिव एक्ट है. कुछ लोग बेड पे बैठे रहते हैं, तो वो अपने पैर हिलाते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न. दे हैव डू दैट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड द कंपल्सिव एक्ट विदाउट ऑब्सेसिव थॉट. बट मोस्ट कॉमनली ऑब्सेसिव थॉट को फॉलो करते हुए आपको कंपल्सिव एक्ट दिखाई देंगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में. अनयूजुअल, इरेशनल, रिपीटेटिव, मीनिंगलेस एक्टिविटी दैट अकर्स आफ्टर द ऑब्सेसिव थॉट. यहाँ पे पर्सन में इंसाइट प्रेजेंट होती है. ऐसा नहीं होता कि वो सराउंडिंग्स के बारे में अनअवेयर होता है. दीज आर इरेशनल, नॉट रियलिस्टिक एक्ट, सच एज काउंटिंग, ऑर्डरिंग, एक बार बार किसी चीज़ को चेक करना, वॉशिंग करना, अपने हाथ बार बार धोना. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ compulsive act. Next we are going to discuss about the etiology of obsessive compulsive disorder. So here so many etiologies, uh, having those are introduced by some psychiatrists, but here we discuss about three main etiologies. These three main etiologies are: first is neurotransmittal activity, neurotransmittal theory. According to this theory, the neurotransmitter, a important neurotransmitter which is present in our brain and which is secreted in our brain, that is serotonin. ये थियोरी क्या सजेस्ट करती है? इफ द सीरोटोनिन लेवल इज हाई,
in the brain that may cause the obsessive compulsive disorder according to the neurotransmitter theory. Second theory है psychodynamic theory. According to the psychodynamic theory that is introduced by the Freud, जिसमें उसने बताया कि डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज. तो उस स्टेज, वो जो स्टेजेस हैं उनमें से अगर पेशेंट, अगर पर्सन जो चाइल्ड है वो अगर ओरल स्टेज में फिक्स्ड हो, सॉरी एनल स्टेज में फिक्स्ड हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन गेट्स अनकंट्रोल्ड. Freud suggests that child personality development is fixed at the anal stage. At that person gets uncontrolled sexual desires and anger. तो सिगमंड फ्रूड क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक थ्योरी, इफ पर्सन इज फिक्स्ड इनटू द एनल स्टेज, दैट पर्सन में डेवलप द ओसीडी. ठीक है. नेक्स्ट आता है माल अडेप्टिव लर्निंग. माल अडेप्टिव लर्निंग, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, द डेवलपमेंट क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलाई. बहुत तरह की लर्निंग होती है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशन. ये भी एक एग्जाम्पल है कि आपको किसी सिचुएशन में डाला जाता है, फिर आप उसके बारे में सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, अपने आप सॉल्यूशन खोजते हैं. दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है. जैसे किसी व्यक्ति को तैरना नहीं आता, आपने एंड ही जम्प्ड इनटू द वाटर. ठीक है. वो ट्राई करता है, आप उसको एक बार बचा लेते हैं, फिर आप उसको फिर डालते हैं, धीरे धीरे करके. पहले से कोई सीख के नहीं आता, धीरे धीरे सीखना पड़ता है. वो क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है. ठीक है. जैसे क्लासिकल स्टिमुलाई होता है, बिकॉज पर्सन में बी कंपल्सिव बिहेवियर टू कॉप विद द एंजाइटी. उस क्लासिकल कंडीशन में पेशेंट को एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी को वो कॉप करने के लिए, उस एंजाइटी को मैनेज करने के लिए कंपल्सिव एक्ट करता है. जैसे कुछ लोग, जैसे ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, दे स्टार्ट ब्लिंकिंग देयर आइज रिपीट फास्टर. ठीक है. कुछ लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सीटी बजाना स्टार्ट कर देते हैं. कुछ लोग बड़ी बड़ी सांसें भरते हैं. वो क्या है, कंपल्सिव एक्ट है टू रिलीव देयर एंजाइटी. तो उस क्लासिकल माल अडेप्टिव थ्योरी क्या कहती है, आप एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर शो करते हैं. दो सो देर आर 3 थियोरीज दैट सजेस्ट द etiology of the obsessive compulsive disorder. Next we are discussing about the sign and symptoms. According to the sign symptoms, we are also discussing the some type of OCD, कितने तरह की हो सकती है, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम्स भी आ सकते हैं. सो दैट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर साइन सिम्टम्स, फर्स्ट आता है प्रीडोमिनेंट थॉट्स. ठीक है. This is characterized by repetitive thoughts which are not associated with compulsive act. ठीक है. इसमें क्या होता है, पर्सन को डोमिनेंट जो है वो थॉट्स होती हैं. ठीक है. पर्सन डज नॉट फॉलो द कंपल्सिव एक्ट. इसमें सोचता है उसके बारे में, रिपीटेटिव थॉट्स आती हैं जो कि अनवेलकम्ड हैं. ठीक है. और दिस आर नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एक्शन. ठीक है. कॉमनली थॉट्स आर रिलेटेड विथ सेक्स और एंगर. ये इसी से रिलेटेड थॉट्स होती हैं जो बार बार दिमाग में स्ट्राइक करती हैं, बट दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग एंड दैट डज नॉट हैव एनी कंपल्सिव एक्शन. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड द प्री डोमिनेंट थॉट्स. इसमें क्या साइन सिम्टम्स दिखाई देंगे, पेशेंट को बार बार रिपीटेटिव उसको थॉट्स आते रहेंगे बस. ठीक है. वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, बट वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता. सेकेंड टाइप में आप देखोगे, इट इज़ रेयरस कंडीशन, द प्योर कंपल्सिव एक्ट. इट इज़ ए रियल नहीं है यहाँ पे, यू जस्ट करेक्ट दैट. इट इज़ ए रेयर कंडीशन, रेयर सिचुएशन. हेयर द कंपल्सिव एक्ट एसोसिएटेड विदाउट ऑब्सेसिव थॉट. यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्सेसिव थॉट नहीं होता, बट उसको कंपल्सिव एक्शन होता है पेशेंट के पास. बहुत कम है, क्योंकि बगैर सोचे आप करोगे थोड़ी, है ना. तो आप बगैर सोचे आप बार बार वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो मीनिंगलेस है. दैट इज कॉल्ड द प्योर कंपल्सिव एक्ट. ठीक है. जैसे कुछ लोगों को मैंने आपको एग्जांपल दिया ना एक,
कि कुछ लोग बेड पे बैठ के अपने पैर हिलाते रहते हैं, चेयर पे बैठ के पैर हिलाते रहते हैं, कंपल्सिव एक्ट है वो, ठीक है, बट वो उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं. दे आर रियली अवेयर रिगार्डिंग द इनसाइट, दे आर वेरी अवेयर रिगार्डिंग सराउंडिंग्स, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. कुछ लोग नाखून चबाते रहते हैं अपने, वो क्या है उसका प्योर कंपल्सिव एक्ट है विदाउट एनी ऑब्सेसिव थॉट. सो इट इज सेकंड. एंड थर्ड वन एंड मोस्ट कॉमन इज मिक्स्ड, जिसमें पूरा आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव दिखाई देगा. इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, जैसे वॉशर हैं, चेकर हैं. इसमें एक अनवेलकम थॉट होता है और उस अनवेलकम थॉट पे एक एक्शन प्रमोट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंपल्सिव एक्ट. जैसे उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, वो बार बार वो अपने हैंड वॉश करता है. उसको लगता है दीवारें बहुत गंदी हैं, दीवारों को साफ़ करेगा. उसको लगता है कि उसने काउंटिंग किया, उसको लगा कि ये गलत हो गया, बार बार वो अटक जाएगा, उसको अपने आप रियलाइज़ होगा कि ये गलत है, फिर वो उसको करेक्ट करने के लिए दोबारा से 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4. दैट इज़ कॉल्ड द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. इसके अलावा कुछ और दूसरे साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशेंट एंजियस होगा, पेशेंट हैव द एंजाइटी, पेशेंट हैव द डिप्रेशन इन द ऑक्यूपेशनल लाइफ, सोशल एक्टिविटी, डेली लिविंग. ये सारे साइन सिम्टम्स जो आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ. नेक्स्ट आता है हाउ वी कैन मैनेज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. वी कैन मैनेज बाय द एंटी साइकोटिक. यहाँ हम पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं. जैसा आपने पढ़ा होगा, एंटी साइकोटिक ड्रग दो तरह की होती हैं, दैट वी आल्सो डिस्कस्ड इन द साइकोफार्मेकोलॉजी. वन इज ट्रेडिशनल ड्रग, ठीक है, और अनदर वन इज न्यूअर ड्रग्स. ये आपने हम पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में. इसके कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, जैसे होलपेरिडोल है, क्लोरोप्रोमाजिन है, ठीक है. तो ये कुछ एग्जाम्पल एंटीसाइकोटिक के. एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जैसे हमने पढ़ा है SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मोनोऑक्साइड इनहिबिटर्स, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक इनहिबिटर्स. ये कुछ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती है जो हम यूज़ करते हैं. एंटी एंजाइटी जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, हम पेशेंट को बिहेवियरल थेरेपी दे सकते हैं, और दूसरी कुछ साइको सोशल थेरेपीज हम पेशेंट को दे सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट द OCD. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन यू आर seeing the lectures you must keep your notes in front of you. That's ये वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, वो आपकी बहुत मदद करेंगे सीखने में. थैंक यू वेरी मच.